ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਗਲ ਰਸਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ। ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਗਲ ਰਸਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਉ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ, ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕਹਿ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸ਼, ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕਹਿ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਆਓ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗਜ ਗਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਊ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। Everybody has to go, maybe today or tomorrow or the day after. ਅੱਜ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਆਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰੋਵੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਵਿਖਾੜੀਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਏ ਰਿਆਈ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਖਿਆ।
That is quite different. इसलिए मैंने ये गल कहने की आज्ञा देना, दुनिया विच मौत के प्रति जे किसी का नजरिया वखरा है तो सिर्फ ते सिर्फ गुरु नानक का नजरिया वखरा है, बाकी सब दुनियादारों का नजरिया एक जैसा मौत के बारे। तुसी सोहेला साहिब पढ़ते हो, सोहेला साहिब का पहला शब्द आखिरी पंक्ति है। गुरु जी पता की आखते हैं, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। जे तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚੇਤੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲकर ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ। ਸੰਬਤ ਮੈਨੇ ਕੀ ਸੰਬਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੰਬਤ ਤੋਂ ਸਾੜ ਤੋਂ, पर इस शब्द के प्रकरण के मुताबिक इत्थे संबत का भाव है द राइट मोमेंट एंड द टाइम, द पर्टिकुलर मोमेंट और द टाइम ऑफ माई डेथ। संबत पर नाल सतगुरु आखदे ने मौत की गल थोड़ा हो रही है, इत्थे ते साहा की गल हो रही। संबत साहा ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਾ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਾ ਸਾਹਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤਬਾਹੀ, मौत दुख है, मौत लुटे जाना, बर्बाद हो जाना। पर गुरु नानक आखते हैं नहीं नहीं, मौत तबाही बर्बादी नहीं, बल्कि मौत ते साहा, साहे का मौत। संबत साहा लिखिया, वाह सतगुरु आखते हैं भोलिओ, मौत ते मेरे लिए अकाल प्रभु वाहिगुरु नूं मिलन का एक मौका है, मिलाप का समय। ते मिलाप वाले रोईदा थोड़ा, मेरे वाले तो खुश होईदा। इसलिए महाराज गुरु नानक देव अगली पंक्ति में आखते हैं मिलकर पावो तेल। देखो साडे नालों ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੇਲ ਚਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸੇਮ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਚਸਦੀਆਂ ਸਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਗੌਣ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੌਣ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਚਸਦੀਆਂ ਜੇ, ਗੌਣ ਕੱਢਦੀਆਂ ਜੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਸੀਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਤੇਲ ਚਸੋ। ਕਿਹੜਾ? ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ। इसका मतलब ये होया, क्षमा कर दिया जे हालांकि सानू अज भी मौत डराउणी जापदी है, तबाही बर्बादी हाय हाय जापदी, फिर एक गल बर्दाश्त कर लेना। मैनू आखना पैगा भी असी ना सोहेला साहिब दी इन्हां दो पंक्तियां ते अर्थ भी नहीं समझदे, क्योंकि गुरु नानक तो नजरिया है
पढ़ना तो इसलिए सी ताकि साडा नज़रिया भी इहो जिहा होता है, तो जे नहीं होया तो फिर तो सच है ना बई असी शायद कदे चज नाल पढ़िया ही नहीं, भावें असी लख माण नाल कहते रहे नहीं जी मैं तो रोज़ सुखमनी साहिब का पाठ करके सौना नहीं। ये सिर्फ तेरे दिन के अंत की गल नहीं सी, बल्कि जिंदगी के अंत की गल भी सी। दिन का अंत होया, रात आई, तू सौन लगे। गुरु जी आखते हैं उस वेले भी अरदास कर, रब जाने मैंने कुदरती कल ही सुनिया सच्चे दरबार साहिब के एक रागी सिंह जी बड़े प्यार नाल शब्द गाया करते हैं, हर जपदे फिर ढिल न खींचे मेरी जिंदड़ीए मत के जापै सा आवे कि ना आवे ना। गारंटी है भाई हुण सौण लगे हाँ सवेरे असीं सुखी सांदी उठ पांगे, गारंटी है। मैं हुणे एक गल कदे नहीं भुलदी, आदरयोग भाई साहब भाई धर्म सिंह जखमी लगभग 50 साल की उम्र तो वधेरे सारे सज्जन जरूर उन्होंने महान रागी के बारे में जानते हो। भाई धर्म सिंह इंग्लैंड है करनी रब दी, इंग्लैंड में उन्होंने बाय चांस हार्ट अटैक हो गया, कीर्तनकारी रह सन जिस वे एकदम हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हॉस्पिटल है। उन्होंने दिनों में ना हालना ओपन हार्ट सर्जरी जी बिल्कुल नवी नवी इन्वेंशन हॉस्पिटल लैके डॉक्टर आखिर थोड़ी ना ओपन हार्ट सर्जरी करनी पैनी, प्रोसीजर सारा समझा दिता कि उन्होंने दिनों में इस तरह ही सी भाई एक बार जिस वे एनेस्थीसिया देना भाव बेहोश करना ऑपरेशन तो पहले 5 दिन तक उसने होश में नहीं आना, 5 दिन बाद उसने जिस दिन हॉस्पिटल जाना सी ना ऑपरेशन करवाने के लिए भाई साहब भाई धर्म सिंह जखमी सवेरे अमृत वेले जान पे स्नान किया, सावधान हुए, नितनेम का पाठ कर लिया, नितनेम का एक पाठ किया, फिर एक होर कर लिया, एक बारी होर नितनेम कर लिया, 2 बारी कर लिया, साथी पे एक बारी होर कर लिया, 3 बारी हो गई। जिस वे चौथी बार शुरू कर लगे ना तो साथी आखने लगे भाई साहब की गल अज बार बार तुम नितनेम कर रहे हो, तुम नितनेम करते रहे सवेरे। भाई साहब आखने लगे देखो मैंने डॉक्टर ने आख्या 5 दिन ना तुहानू कोमा में रखना है, बेहोश रखना है। मन लो 5वें दिन जदों मैनू होश में लियाउण की वारी आउणी है, रब जाने मैनू होश आवे कि ना आवे, तो मन लो जो उस वक्त मेरी मौत हो गई तो मेरा गुरु कलगीधर की आखेगा सिखा तू 5 दिन नितनेम ही नहीं किया। इसे लिए ना मैं 5 दिन का एडवांस नितनेम कर लिया, घट्टो घट गुरु की हजूरी से मेरी हाजिरी पे लग जाएगी। यकीन जाने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ मौत नहीं होती, उन्होंने मौत मर जाना नहीं, उन्होंने मौत तबाही बर्बादी रोण कुरनान हाय हाय नहीं होता, उन्होंने कुछ हो उन्होंने मौत तो सगों प्यारे अकाल पुरख वाहिगुरू की गलवकड़ी में पहुंचने का एक जरिया है। किते इन्हां सब गल्लां तो ये भावना ना लै लैना कि मैं किते दुनिया विच ये गल समझाने का यतन कर रहा भाई ठीक है जिहड़े जिउंदे भी पए ना उन्होंने अज मर जाना चाहिए, मौत की प्रेरणा की थी नहीं तो प्रेरणा की गल क्षमा कर प्रेरणा की गल इतने कोई सुसाइडल थॉट की गल नहीं हो रही, गल तो सिर्फ ये नहीं हो रही सिखा जिन्ना समा तेरे कोल है तो खुशी नाल वाहिगुरू के प्यार विच जी, पर जदों जे मौत आ ही जाए तो घबराना क्यों है, डोलता क्यों। देखो इस परिवार नाल मेरी पुरानी साथ सी,
पर ये सांझ गहरी उस दिन हुई जब मैंने अज भी याद है सन 2014 में ना एक दिन मेरे मिसिस ने मैंने सुनेहा दिता कह लगे लुधियाने तो एक भैन जी ने उन्होंने असीं रल के किसी होर दे राही सत्संग विच गलबात कर रहे हैं। अजकल बड़ा डिप्रैस फील कर रहे हैं, बड़ा उदासी विच है, वैसे कीर्तन कर रहे। मैं पूछा कारण की होया? आखन लगे उन्होंने पति देव ना थोड़े दिन पहला चढ़ाई कर रहे हैं, जिस करके ना विछोड़े विच मन अत उदासी की हालत में चल गया। वो दिन से जब पहली बार मैं भैन जी परमजीत कौर होਰਾਂ ਨੂੰ फोन किया, सचमुच मैंने भी पति किया। आम हालात में सानू पता नहीं लगता, पर किसी जीवन साथी को पूछा जा सकता है कि विछोड़े का की अर्थ है, विछोड़ा कितना को तड़पाउंदा है, विछोड़ा कितना को दुखदाई जाता है। उस दिन तो सतगुरु ने कृपा की थी, मेरी मजबूरी सी भाई मैं तो तुहाडे तो 1000 मील दूर है, पर सतगुरु ने कृपा की थी। उस दिन तो मैं लगातार एवरी डे बिना लाना आदरयोग भैन जी होਰਾਂ ਨਾਲ फोन पे थोड़ी देर गलबात करते हैं, गुरमत की गलबात करते हैं, तो फिर सिमरन करते हैं, सिमरन सत्संग शुरू। हर यकीन जाने उस दिन मैं समझ आई भाई गुरु की इस बाणी का, गुरु के इन्होंने बोलने का मतलब सतगुरु आखते हैं ना, साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रह। तुसी सुखमनी साहब से पढ़े, फिर बोलो जरा, साध संग हर हर जस कहत। असी सारे ही वाहिगुरू के गुण गावे, शक नहीं, पर जदों सत्संग विच रल के इकट्ठे होके असी वाहिगुरू के गुण गावांगे ना, लो फिर उसका इफेक्ट देखना। गुरु जी आखते हैं सर्व रोग ते ओह हर जन रह। उस हरि दे जन का कोई दुख कोई रोग नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। एक अटल सच्चाई सारी प्राप्त होगी। साढ़े कोल ना गुरु के वचनों प्रति विश्वास है नहीं, ये गल तो सच है, असीं जानते हैं। तुसीं डायरैक्टली मैनूं पुछो, तुसीं कदे झूठ बोले? सब जाने मैं ईमानदारी नाल हाथ जोड़ के मानांगा भाई एक सामने बड़ी बार गलती हो गई होगी, नो बेटी। तुसीं वड्डे तो वड्डे बंदे नूं हाथ ला के आखो भाई आ इन्हें झूठ बोलिया, सच गल है मैं मानता, मैं मन सकता कि सारी दुनिया झूठ बोलती हो गई, पर मैंने एक गल दसी कि मेरे सतगुरु कदे झूठ बोलते सन। की ख्याल है तुहाडा? नहीं हो सकता। गुरु ने जो कुछ किया केवल ते केवल सच। और सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब के गुण बड़े प्यारे ने। गुरु नानक आखते हैं सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेड़ा, एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस व्हेन इट इज नीडेड। जदों सच बोलना चाहिए। साडी प्रॉब्लम यह असीं ना बहुत बार सच बोलने लगे घबरा जाने, खतराउण लग पे। ये गल सोच के भाई जदों मैं सच बोल रहा ना, जिहड़े लोग मेरे सामने बैठे ने इन्हां नूं पसंद नहीं आउणा। असीं सोचने चल ठीक है सच ही बोलना है, जरूर इन्हां नूं सुणाउणा है, बाद विच सुणा लांगे। गुरु नानक आखदे ने बाद विच बोलिया होया सच कोई झूठ नाल वधेरे चंगा नहीं हुंदा। हिम्मत है ते सच बोलण वेले सच बोल। सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेड़ा। जे गुरु का बोल सच है कि गुरु का यह बोल सच नहीं। साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत। असीं अजमा के देखें
क्यों नहीं देखे? भाई गुरु को कैसे कर सकते हो? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰੱਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੂਨ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। और सज्जनों में देख के हैरान सा कि विदिन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के विच ही भैन जी होरां दी मानसिक हालत बड़ी चढ़दी कला वाली हो गई। इसी नाम जपण का इफेक्ट, सत्संग विच रल के बाणी पढ़न का लाभ, गुरु के वचनों को अपने हृदय विच वसा लैण का मतलब। क्यों कि उस वेले जीवन साथी की मौत भुल गई सी, भुल नहीं सी। भुलने लिए नहीं आख्या जाता, ना ही भुलना होता है, ना ही इंसानी फितरत कदे भुल सकती है। भुलना नहीं होता, वरना नाम जपन नाल, बाणी पढ़न नाल मन इन्ना चढ़दी कला विच हो जाता है कि वो विछोड़े का दुख खत्म हो जाता है। प्रतीति ये हो जाती है, गुर मेरा संग, गुर मेरा संग सदा है नाले, सदा है नाले। यकीन जाने जिवें जिवें गुर मेरा संग सदा है नाले की प्रतीति होती जाएगी ना, होवे होवे दुख अपने आप जाने नहीं। मौका मिले तो जमा के वेख लेना। मैं बेनती कर रहा था, आम हालात में सानू मौत बड़ी दुखदाई नजर आती, शक नहीं, पर जिसनों गुरु की बाणी द्वारा सच नूं समझण दी इच्छा होता है, उस दे लिए फिर मौत दुखदाई नहीं लगती। मैंने एक वार्ता याद आ रही थोड़े नाल साझी। भाई साहब भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, कहते एक दिन असी गुरुद्वारा पाक पटन के दर्शन करते हैं। गुरुद्वारा पाक पटन जिथे महाराज गुरु नानक देव ने मूले खतरी का उद्धार किया सी। एक पाक पटन की गल गुरुद्वारा बनया। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं लगभग 100 साल पहला जिस वे असी एक बार गुरुद्वारे में दर्शन करने गए ना, तो जिवें ही गुरुद्वारे की बाउंड्री वाल तो असी अंदर बड़े, सामने देखा भी गुरुद्वारा हाल के बिल्कुल बार बरांडे में एक निहंग सिंह जी बैठे हुए हैं। जोड़े लाउंदियां, पैर धोंदियां, हाथ धोंदियां असीं वेखदे रहे भी निहंग सिंह जी ना घड़ी घड़ी अपना सोटा चुक के ना दरवाजे वाल, गुरुद्वारे के दरवाजे वाल दौड़ते हैं ते नाल उच्ची उच्ची बोलते हैं जिवें किसी नाल लड़ रहा हो। पर सामने कोई नजर नहीं आ। कहने लगे घर जोड़े उतार के ना असीं जिस वेले निहंग सिंह होरां दे कोल पहुंचे, भाई साहब देखते हैं, मैं प्यार नाल पुछ लिया, मैं फौजो अज बई किहदे नाल जंग हो रही? निहंग सिंह जी होरी आखन लगे, सिंह जी असल में ना अज मेरा जान का वेला आ गया है। मेरे को कुछ माड़े कर्म हो गए हुण जिंदगी विच, इसलिए ना मैनू जम लैण आया खड़ा है ते मैं उहदे नाल झगड़ा कर रहा भाई मैं गुरु का सिख हां, गलती हो गई होनी है पर आखिर तो मैं गुरु का सिख हां, मैं तेरे नाल नहीं रहना। जावांगा ते मैं गुरु के सिखां नाल जावांगा, तेरे नाल नहीं जांदा। भाई साहब भाई वीर सिंह जी आखते हैं निहंग सिंह जी होरां नाल ये गल हुई जदों होए, असीं ना अंदर हाल विच मत्था टेकण लई चले गए। भाई साहब जी लिखते हैं कहते जिस वेले बाद विच वाहिगुरू कोई नहीं त्याग छड्ड दे ठीक। भाई साहब जी लिखते हैं जिस वेले असीं मत्था टेकण गए,
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਾਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਫੌਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾ करके मेरी अरदास प्रवान कर ली, जब दौड़ गया गुरु के प्यारे सिख मैनू लैण नहीं आ गया। पर ना मैं ना उन्होंने प्यार नाल दो हाथ जोड़ के बेनती की, गुरु का हुक्म है जब हमरे दर्शन को आओ बन सुचेत शस्त्र सजाओ, कंगा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंदे। आखन लगे मैं उन्होंने बेनती की, मैं गुरु के चरणों में हाजिर होना है, मैं जरूर ना एक बार दस्तार सुन के सजा दूँ फिर चल। भाई साहब जी लिखते हैं, असी कोल खड़े देखते हैं, निहंग सिंह जी ने बड़े सोहनी तरह सुंदरता नाल दस्तार सजाई। दस्तार सजा के उत्थे ही लेट गए। कुछ मिनटों बाद असी देखिया तो शरीर त्याग चुके हुए। इहो जे बंदे दी मौत की किते दुख भरी गल, रोना चाहिए, हाय हाय करना चाहिए। भगत कबीर साहब जी ने इसलिए आख्या सी, कबीर संत हुए क्या रोइए, जो अपने गृह जाए, रोवो साकत बापुरे, जो हटे हाट बिकाए। देखो भाई, असी रोंदे थे हाँ अपने को करके, क्योंकि साडा मन किसी ने जुड़िया होता है। मन की हालत हुई लगभग तन वर्गी, शरीर कमजोर होता है ना, तो मन वाला बंदा अपने हाथ में सोटी पट ले, सोटी के सहारे चल। रब ना करे जे किते सोटी हो गए कमजोर, माड़ा थे भार पाया कड़क देने टुट जाए, बंदे का की हाल होएगा? डिग पाएगा, हड्ड गोडे बना लेगा। यह हाल ना साडे मन दा होंदा है। साडा मन हर वेले अपने संबंधियों दे, पैसे दे, माया दे, व्यापार दे, कामकार दे, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, मात पिता भाई सुत बनता इष्ट मीत और भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को न सहाय। भाई को सच क्यों नहीं सुने? सिर्फ एक आखिरी गल मैं बड़े में समझ करना चाहूँगा। देखो सन 2014 के मिडल तो लैके 2021 के जनवरी तक कितने दिन बने होंगे? तो जे असी रोज एवरेज चलो बन लो भाई 1 घंटा भी रोज सत्संग का लगा ली, कितने घंटे सत्संग हो गया? भगत कबीर साहब से आपने कबीर एक घड़ी आदि फुन आद, 1 घड़ी 24 मिनटा की अति तो अति 6 मिनट रह गए सारे। एक घड़ी आदि हूं फुन आद, भगतन सेती गोष्ठे जो कीनो सुनना। मैं गल पता क्या कह रहा? भगत कबीर साहब का एक वचन होर चेते कर, कहते ने कबीर कीचड़ आटा गिर परिया, कछु ना आयो हाथ, पीसत पीसत चापिया, सोही निभया साथ। की भाव है? मैं फिर दोहरा के करा हिमा करिया दे भाई, कीर्तन सुनना बड़ा चंगा है, पाठ करना बड़ा चंगा है। तुसी अखंड पाठ करवाओगे चंगा कर दो, पर जे गाउंदिया पढ़दिया सुनदिया समझिया कुछ ना,
गुरु जी पता की आखदे, सतगुरु आखदे ने सतगुरु नो सब को देखदा जेता जगत संसार डिठे मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना करे विचार। भाई शब्द ही विचार ना होता। कबीर साहब जी के वचन है, फिर ध्यान ना सुनो। भगत साहब कहते हैं कबीर कीचड़ आटा गिर परिया पिछू ना आयो हाथ, पीसत पीसत चाबिया सोई निभया साथ। की बात असल में एक उदाहरण देना, पुराने जमाने की उदाहरण। एक बीबी ना बेचारी आटा पीस के इकट्ठा करके घर वाल नहीं जा रही थी। करनी रब दी राह विच ना चिकड़ विच पैर लग्या डिग पई, आटा भी डिग पिया, घंटियां की मेहनत बेकार चली गई। पर भगत साहब आखदे ने ये बेकार इसलिए चली गई क्योंकि ये यतन कर रही सी कि मैं हुण इस नूं बचा के रख लवां फिर वरतां। जदों तुसीं ये आखोगे ना भी नहीं हुण नहीं मैं फिर नाम जप लवांगा, कोई नहीं दे पता ये जिंदगी किस वेले मौत के चिकड़ विच डिग पैणी, कोई नहीं दे पता। पर जिवें उसने आटा पीसदे होए जिहड़े 2-4 दाणे चबड़े वही उसने काम आया। इस तरह भाई रोज काम कार करदे जिंदगी जिउंदे तुसीं जिन्ना थोड़ा जा बहुता सतसंग कर लोगे, नाम जप लोगे, वही तुहाडे काम आउणा है। मत सोचो कि बुढ़े हो के करना, you never know। हर जपदे फिर ढिल न कीचई मेरी जिंदड़ी है, मत के जापै सा आवे कि ना आवे। कोई देखो अज भी ये गल सच है, रब जाने असीं अगले साल या फिर कभी इस तरह सारे जने रल के बैठ सकांगे, गुरमत विचारा कर सकांगे, पता कोई। फिर क्यों ना हुणे ही असीं सत्संग का आनंद माण लईए। एक ना छोटी जी खिचक ध्यान राणी चाहिए। मैनू ना ये गल सच जानो समझ कोई नहीं आई बई किसी व्यक्ति के चले जान तो असीं 8, 9, 10 या 11 महीने बाद उसकी बरसी मनानी बड़ी जरूरी समझने हैं। तो ख्याल करते हैं भी जे काम ना होया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाए। क्यों करते हैं इसमें? क्यों करना चाहिए? रीजन भी है पीछे कीर्तन करे ना भाई, जे मैं सच सुना तो बर्दाश्त कर। असल में ना ये उस ख्याल की रहद खूंद है जेड़ी ब्राह्मणी विचारधारा है कि कोई भी बंदा मर जाने तो बाद ना उसको 360 दिन जम मार्ग ते चलना पैंदा। कितना? 360 दिन उसका सबर पूरा होना। इसलिए 360 दिन पूरे होने तो पहला उस दे निमित्त उसकी आत्मा की मुक्ति लई ब्राह्मणों को बुलाओ, दान करो, यज्ञ करो, पिंड भराओ, दीवे पाओ। कदों पड़ा? 360 दिन। असीं सोचा भी असीं सिखां ये काम असीं भी करना है, पर चलो हुण 360 दिन वाली प्रॉब्लम तो सानूं भी हुई। इसलिए 360 दिन पूरे होने तो पहला यह ख्याल नहीं ना भी साल पूरा नहीं होना चाहिए, पहला होना चाहिए। मैं तो होर गेट वेखना बड़ी अजीब थी। थोड़ा समा पहला साढ़े एक रिश्तेदार की मौत हो गई। कुदरती मौत उदों हुई जदों उन्होंने एक बच्चे का ब्याह रखा। हुण परिवार में मुसीबत पै गई भाई बच्चे का ब्याह किवें करिए, क्योंकि हर वेले ना साडे दिमाग ते एक बोझ भारू रहिंदा भाई हाय हाय जिहड़ा बंदा मर गया ना वो तो हाना जम मार्ग विच भटकदा पिया। जदों तक उहनूं उदों कढ ना लईए उदों तक असीं कोई चज दा काम नहीं करना, खुशी वाला काम नहीं करना।
पर भाई ये सारे वहम ते सानू उदों कलपाउंदे ने, उदों दुखी करनगे जदों असीं इस वहम विच फसे होए होवांगे। ये गल चेते रखना। पहली गल, सिख नूं जम मार्ग ते जाण दी लोड़ नहीं हुंदी। हुण देखो कितनी अजीब हालत है साडी। एक पासे ते जिस दिन चढ़ाई करते हैं उस वेले उसके शरीर में भी अगर भेंट करने तो पहला ना असीं जाके अरदास करते हैं, अगर भेंट करने वेले भी अरदास करते हैं, फिर गुरुद्वारे आके भी अरदास करते हैं, संगती रूप विच भी 8-10 दिन बाद 15 दिन बाद जदों सानूं कन्वीनियंट लगे फिर अरदास करते हैं। तो फिर असीं नाल भी लिखते हैं अंतिम अरदास ते अरदास ये भी करते हैं, महाराज सच्चे पातशाह तुसीं किरपा करियो इस आत्मा नूं अपने चरनां विच निवास बख्शिया जे, पर सानूं विश्वास कोई नहीं। फिर भी असीं सोचते हैं जे बरसी ना बनाई 360 दिन दे विच हाय क्षमा करियो कि इहो जिहा ख्याल तुहानूं मूर्खता नहीं जापदे। अरदास भी कर रहे हैं, गुरु ते विश्वास पर नहीं कर। इसे ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਮ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। पर ना मन चो ये ख्याल करते हो भाई हर हाल 12 महीने पूरे होने तो पहला सारा ना पुराना काम करना चाहिए, दोबारा अरदास करनी चाहिए। नहीं तो पता नहीं जीवात्मा हालत पड़ती ना करती रब्बी घर विच रब्बी दर ते जीवात्मा का हिसाब ते उस वेले ही हो जाता है जदों जीवात्मा की इस संसार रुखसती जदों इत्थों जाना। ये गल तो उस वेले लागू हो जाती है। चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर करनी आपो अपने के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ध्याया गए नानक ते मुख उजले कीर्ति। साडे लिए सिर्फ आह काम करने वाला है। असीं किसी भी जीव आत्मा दे लई अथवा अपने कल्पदे हुए मन नूं शांति देण दे लई नाम जपीए, बाणी पढ़िए, कीर्तन करिए, सत्संग करिए, ये सारा जीवन सफल होना है। आदरयोग भैन जी ने मैंने बार बार आख्या करते सन, वीर जी तुसीं दा जो मर्जी हो, एक बार ना मेरी अंतिम अरदास में जरूर शामिल हो लेना। करना प्यार जसकीरत सिंह होरां ने जिस वे पहला इस लिया भैन जी भी चढ़ाई कर गया, मैं उस वे अपने आप को बेहद लाचार बन्या हुआ प्रतीत कर रहा था क्योंकि फ्लाइटा बंद सी, वीज़ा मिल नहीं सी रहा, आया जा ही नहीं सी सकता। पर जसकीरत सिंह होर मैंने बार बार चेते करवाते सन, वीर जी ये तो थोड़ी भैन का घर है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਓਗੇ। ਨਾਮ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ गुरु जी ने बाणी में से कहा कि ना लिया तो दिया मान जिन से सज्जन क्यों भी सने, जिन्ना कोलों मान लिया, जिन्ना कोलों प्यार लिया, जिन्ना नु प्यार कीता वो सज्जन भुल जाण, भुल सकते सचमुच नहीं भुल सकते। मैं गुरु के चरणों में ये अरदास करना है, मेरे सतगुरु पातशाह तुसीं परम कृपालु रहमतवान हो महाराज, तुसीं सदा ही सब जीवां नूं असीसां देते हो, कृपा करते हो, रहमत करो सच्चे पातशाह। तुसीं इस परिवार के सिर ते मेहर भरिया हाथ रखना ताकि ये बच्चे भी इस तरह गुरमत नाल गुरबाणी नाल सिੱਖੀ नाल जुड़िया होया अपना जीवन सफल करन।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਬਸ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਏਦਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਏਦਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਚਰਨ ਝਾੜਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਣ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਣ।